The hexadecimal number system is very closely related to the binary number system. Hexadecimal number system is base 16. Its base is 16, and therefore it needs Okay, sir. 16 different values to represent each digits. As its base is 16, so it means it has 16 numbers or digits. Okay, Different digits. 16 different digits, 0 to 9. Okay, then 10, not okay, Yes, 10, but we cannot write 1 0. 10 is 1 0. So if we write 1 0, it's mean it confuses us with the binary number system. Okay, अगर हम इसमें 1 0 लिखते सर हैं, पहले आपके साथ क्या हो रहा था? आप लीव करके 1 थे। 0 लिखते हैं, तो देन इट्स मीन कि ये कंफ्यूज करेगा हमें बाइनरी के साथ. सो वी कांट राइट 10. ओके, इंस्टेड ऑफ 10 वी राइट A, B. Okay, this one A representing the 10, okay? B is representing the 11, C is representing the 12, D is representing the Yes. 13, and E is representing the 14, and F is representing the 15. So it's mean 0 to 9. पहले 0 to 9, फिर A to, Okay, then A, then B, then C, then D, then E. Okay, then F. F is at number 15 position. Okay, number 15 position. So how many digits? Because it is starting from the 0, so it's mean these are total 16, and obviously its base is also 16. Okay, so hexadecimal number system having base 16, and so it's mean it has digits from 0 to 9, and then A, B, C, D, E. 10. Okay, A to F. total is 0 to 15. Yes, sir. Right, 0 to 15. Using the Yes, same as a binary, or this gives the heading of 16 raised power 0. ठीक है, जो कि हम पिछली बेसिस में भी देख चुके हैं कि ये पोजीशंस होती हैं. ये पहली पोजीशन है zeros, then 16 raised power 0, 16 raised power 1, 2, 3, 4 and so on. इसी तरह ये so on मूव करेगा. ओके, जिस तरह हमने लास्ट टाइम उन लेक्चर्स में देखा था, 2 रेस की पावर देखते थे ना हम, 2 रेस पावर 0, then 2 रेस पावर 1, 2 रेस पावर 2, 2 रेस पावर 3. So because it is hexadecimal number system, so its power, its base is 16. तो हम base 16 में वर्क करेंगे, base 16 या 16 की पावर में बात करेंगे. ओके, अंडरस्टैंड what is the hexadecimal number system? ठीक है, hexadecimal number system having base 16 and having 16 different digits starting from 0 to 9. Then for instead of writing 10, we write A, and 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, and 15 F. Okay, understand, this is the hexadecimal number system. Okay, so it has since 16 is equals to 2 raised power 4, this means the 4 binary digits are equivalent to each hexadecimal number. ये बात आपने याद रखनी है कि hexadecimal number का सिस्टम का जो भी नंबर होगा, ठीक है, hexadecimal number का जो सिस्टम होगा, वो नंबर जो होगा वो बाइनरी की 4 बिट्स के बराबर होगा. ठीक है, क्लियर हो रही है बात आपको? Yes, sir. बाइनरी की 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा. देखें इस टेबल को, ये 4 यहाँ पर देखें बाइनरी में जो 4 जीरोस होते हैं वो एक हेक्साडेसिमल के सिंगल 0 से रिप्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसी तरह हेक्साडेसिमल का जो 1 होता है वो 0001 से रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, बाइनरी के अंदर 2 जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है 10 यानी 0010, यानी 4 बिट से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे. हेक्साडेसिमल का हर नंबर बाइनरी के लिए 4 बिट से रिप्रेजेंट होगा. 3 is 0011, 4 is 0100, 5 so on. तो ये आपने यहां पर देखें 10 जो है, दिस इज 10. ठीक है, ये 10 है, a is equals to 10 है आपका. ठीक है, फिर ये 10 आ जाता है, फिर 11, then 12. ओके, क्लियर हो रहा है ना आपको? 12, then 13, then 14, and this one last one is 15. तो यू कैन रिमेंबर दिस टेबल एज वेल. आप इसको याद रखें. ठीक है, इसकी आपको जरूरत रहेगी. मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा इसको रिमेंबर रखने का, बट ये अगर आप इस तरह भी रिमेंबर रखें दैट्स गुड.
लेकिन ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ये कन्वर्जन में भी काम आती हैं। जिस तरह हम डेसिमल नंबर बाइनरी को डेसिमल में अंडरस्टैंड करते हैं, सेम वे में हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, बाइनरी में ये इजी होता है। क्लियर होगी? तो मैंने आपको यही बात बताई थी कि हेक्साडेसिमल नंबर में टोटल 16 डिजिट्स होते हैं, 0 to 9, then from A to F, which represent 10, 11, 12, 17, 13, 14 and 15. Okay, remember these values and table, right? Clear हो गया what is the hexadecimal number system? देन अब हम चलते हैं इसकी थोड़ा सा कन्वर्जन की तरफ, जो आपके क्वेश्चंस आ भी सकते हैं और जो बेसिक इसका पर्पस है। ठीक है, कन्वर्टिंग फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल इज फेयरली इजी प्रोसेस। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट एंड मूविंग लेफ्ट, स्प्लिट द बाइनरी नंबर इनटू ग्रुप्स ऑफ 4। एक बाइनरी नंबर को 4 ग्रुप्स में आप डिवाइड कर दें। इफ द लास्ट ग्रुप हैज लेस देन 4 बिट्स देन सिंपली फिल इन द जीरोस। अगर उसमें कम है तो खुद आप अपनी तरफ से इसमें यू कैन ऐड द जीरोस एट लेफ्ट साइड। ओके, एट लेफ्ट साइड, यू नो लेफ्ट साइड पे जो जीरो होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, बट अगर वो राइट साइड पे आ जाए फिर वो वैल्यूएबल हो जाते हैं। टेक ईच ग्रुप ऑफ 4 बिट्स एंड कन्वर्ट इट इनटू द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट्स। ओके, अभी आपको मैंने ये पैरा रीड किया, आई थिंक कि आपको अभी क्लियरली तो अंडरस्टैंड नहीं होगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से कर देता हूँ, फिर आपके ये कॉन्सेप्ट सेट हो जाएंगे। देखिए ये एक नंबर दे रहा है आपको, दिस इज इन बाइनरी। ओके, ये किसमें है? बाइनरी में है। इधर यहाँ देख, ये देखिए, ठीक है, इट्स बेस इज 2। सारे आपको बताया था आइदर वो बेस लिख दे देन इट्स ओके, या अगर आपको वैसे ही कह दे कि इट्स अ बाइनरी नंबर, ठीक है, देन आपको पता चल जाएगा कि ये बाइनरी में। एंड हमने इसको कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू 1000 तो क्या आ गया इसका 1 आ गया। ठीक है, ठीक है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, तो सिंपल अप्रोच है, आप क्या करें कि इन नंबर्स को आप 4 के ग्रुप में डिवाइड कर लें, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। ये याद रखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, नॉट फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, योर राइट। तो राइट से जब आप करेंगे तो ये 4 डिजिट्स यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4, देन ये 4 यहाँ से आ जाएंगे आपके पास, और देन ये 4 यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब ये 3 सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये बाइनरी नंबर 3 सेगमेंट में डिवाइड हो गया। यहाँ उसने इसको जरा सेपरेट करके भी लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो रही है बात आपको? अब अगर आप टेबल में देखेंगे कि ये हमने पहले भी बात की थी कि बाइनरी का जो 4 डिजिट हेक्साडेसिमल में जो एक नंबर होता है वो बाइनरी के 4 डिजिट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये 4 डिजिट का आप जो नंबर इधर से उठाएंगे 0001, तो अगर आपको टेबल रिमेंबर है देन इट्स ओके। ठीक है, आप यहाँ से इसकी वैल्यू चेक कर लें। ठीक है, 0001 किधर आ रहा है? दिस वन। ठीक है, ये आ रहा है, इसका मतलब है इट्स, ये क्या लिखा है? 1 लिखा हुआ है, तो इसकी जगह हम किसको रिप्लेस कर देंगे? 1 को। ओके, अगले ग्रुप में चलेंगे, अगली 4 बिट्स का ग्रुप है 1110। 1110 लोकेट करें इस टेबल में, दिस वन। ठीक है, ये 1110 लिखा हुआ है आपका, तो इसका मतलब है 1110 ई से रिप्रेजेंट हो जाएगा। एंड सेम फैशन में आप क्या करेंगे, इसको 1011 बी। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंट हो रहा है ये बी आपका, राइट। ये टेबल से आपने जस्ट वैल्यू देखनी है और पुट अप कर देनी है, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। इट्स मीन के 1011 111 0001 equals to B E 1 ओके ऑफ बाइनरी। ठीक है, यानी कि ये बाइनरी का ये वाला सारा नंबर इक्वल्स टू हेक्साडेसिमल के ये वाला नंबर है, और अगर इन अदर वर्ड्स बोलें तो दिस हेक्साडेसिमल इक्वल्स टू दिस बाइनरी नंबर। ठीक है, वाइस वर्सा है, आप जिस तरह मर्जी इसको कर लें, इट्स डिपेंड कि उसने आपको क्या कहा है, किसको किस में चेंज करना है, राइट। अच्छा, इसमें अब एक चीज आ रही है कि इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर द टेबल, नॉट टू मच डिफिकल्ट, बट ये कि सम टाइम फिर एरर का भी चांसेस होते हैं अगर आपको ये 16 वैल्यूज याद ना हो। बट आई एडवाइस यू कि आप इसको मेक श्योर कर लें, इसको याद कर लें। ठीक है, ज्यादा बेटर है। बट उससे फिर मैं आपको एक सिंपल तरीका और बताता हूँ। ठीक है,
उसके लिए आप देखें एक सिंपल, हमने देखा था, हमने क्या कहा कि 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल का नंबर, ठीक है ना। वो 4 बिट्स कौन सी थी, बाइनरी नंबर सिस्टम का ना, बाइनरी के 4 डिजिट्स जो हैं या 4 नंबर्स जो हैं, डिजिट्स जो हैं, वो हेक्सा के इक्वल होते हैं, ठीक है। सो इट्स मीन कि वो 4 पोजीशंस कौन सी हैं, पहली 2⁻0 याद है ना, ये आपको जो हमने किया था, ठीक है। वो 4 पोजीशन ये वाली है और उनकी वैल्यू क्या है 1 2 4 8, ठीक है। क्लियर हो रही बात आपको। तो अब आप देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये चीज सीख गए, सिर्फ सिंपली आपको ये 4 वैल्यूज याद रखनी है, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर टेबल नहीं भी रिमेंबर है, ठीक है, या कोई कंफ्यूजन है, तो आप इजीली थ्रू दिस मेथड आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, लेट्स से कि ये हमने डिवाइड कर लिया था 0 0 1, ठीक है ना, ये एक वैल्यू थी 0 0 1। अब 0 0 1 को हमने देखना है कि ये बाइनरी की किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, ठीक है ना। आप इजीली रिप्रेजेंट करवा सकते हैं इससे, या चले 0 0 1 से ज्यादा आप ये देख लें 1 ठीक है, 1 0। 1 का मतलब है ये बिट्स है ना, हमने बताया था ये बिट्स बाइनरी में ऑन या ऑफ को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, तो जो वैल्यू कंसीडर करनी होती है उसको हम 1 कर देते थे और जो नहीं करनी उसको 0 कर देते। इसका मतलब है 1 0 ये हो गया आपका, ठीक है। इट्स मीन कि ये सारी ऑन है, ठीक है। अब ऑन का मतलब है कि अगर हम इन तीनों को ऐड कर लें, 8 + 4 कितना होगा 12 + 2 14, ठीक है, इज इक्वल टू 14। तो आपको पता है 14 जो है वो टेबल में किस पे रिप्रेजेंट होता है, इतना तो आप याद रख सकते हैं, ई से, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट होता है, ई से। तो इट्स मीन कि ये किसके इक्वल होगा यहां पर, फिर आप अगर टेबल नहीं भी आपके पास मौजूद, ठीक है, तो ये ई से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है ना। क्लियर हो रही है बात आपको। yes sir, मेथड है, यू विल हैव टू जस्ट रिमेंबर 3 या 4 ये these 4 values 1 2 4 8 1 2 4 8। देखिए और भी एग्जांपल देता हूं, समझ आ गया इसको किस तरह कन्वर्ट। अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा जिससे आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना, राइट। सी दिस वन, ओके। चलिए मैं थोड़ा सा इसको हाइड भी कर दूं ताकि फिर आपको पता चले कि ये कैसे होगा। ये देखें आपको क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, दिस इज द वैल्यू इन बाइनरी नंबर सिस्टम, ओके, एंड यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आपने इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक। सिंपली फर्स्ट स्टेप क्या है कि फ्रॉम राइट साइड यू डिवाइड द बिट्स इनटू 4 ग्रुप्स ऑफ 4 के ग्रुप में डिवाइड कर दे। नंबर 1 ग्रुप आ गया, देन नंबर 2 ग्रुप आ गया, राइट, 1 2 3 4, देन नंबर 4 ग्रुप आ गया, ठीक है, एंड नंबर 5 ग्रुप। अच्छा, देयर मस्ट बी 4 बिट्स इन ईच ग्रुप। अब यहां पर वो बात देखें, मैंने कहा था कि आप 0 खुद लगा सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसकी 4 बिट्स को पूरा करना है, आपको कंप्लीट करना है, तो ये डिवाइड हो गया, क्लियर। अभी आपने कंसीडर करना है, अगर ये एग्जांपल आपको आप अंडरस्टैंड होगी, इट्स मीन कि आपको ये मेथड फिर इजीली आ जाएगा, यू विल नॉट बी डिपेंडेबल टू द टेबल, और रट्टा लगाने की उसमें टेबल पे आपको कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। अब ये देखें, पहले हम इसको लेते हैं, ये है अब देखें सबसे पहले वो पैटर्न ले लें आप जो आपने याद, वो वाला 1 to 4 8, ये, ठीक है, बल्कि मैं इसको उधर ले 1 to 4 8, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस बिट कॉम्बिनेशन आप देखें 1 1 कौन सी ऑन है, वो वाली ऑन कर लें आप, ठीक है। इट्स मीन कि ये वाली पहली 1 है, ये ऑन है, ठीक है, ये भी ऑन है, ये नहीं है, ये 0 है, इसको ऑफ रहने दें, ठीक है, और ये ऑन है। इट्स मीन ये कितना बन गया आपका
8 + 4 12 एंड 1 13, ठीक है। तो ये इक्वल टू किसका हो गया 13। तो A is represented by 10, B is represented by 11, C is represented by 12, D is D represented by 13। इट्स मीन कि यहां पर क्या आ 13 जाएगा आपका D। D क्लियर? ओके, अब फिर आप Yes. नेक्स्ट में आए। बस आपको ये देखें कितना इजी है कि आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। अब ये देखें ये सारी ऑन है, तो मीन कि ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है। 8 4 12 14 एंड 15। तो 15 का जो Yes. टेबल में है इट्स मीन 15 क्या ए, या अगर आप टेबल नहीं याद है तो ए से फिर स्टार्ट कर ले। ए रिप्रेजेंट 10, बी रिप्रेजेंट 11, ठीक है, Yes. रिप्रेजेंट 12, डी रिप्रेजेंट 13, ई 14 एंड एफ 15। तो ये आपका क्या आ जाएगा एफ। ओके, देन फिर आप क्या कर ले, ये आपका आ गया। सर फिर आगे बात आ हाँ ये तो सिंपल है क्योंकि ये सारी 9 तक तो वैसे ही इजी है, वो तो डायरेक्ट ही लिख देना। ये भी जीरो, ये भी नहीं है सर जीरो, 1 और 2 आएगा। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ठीक है। तो ये 1 सर 1 आएगा। 1 आएगा Sir, सिर्फ 1 ये, सर फिर 2 आएगा। और ये क्या आ जाएगा आपका। बच्चे सबके Two. लिए जरा सबको अंडरस्टैंड करने दें, ठीक है। जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं वेरी गुड है, और बाकी बच्चों को भी साथ लर्न करने दें। तो देखें इट्स मीन के ये अब है आपकी 0 0 1 0, तो ये कंसीडर नहीं होगी। ये भी 0 है, ये भी कंसीडर नहीं होगी। दिस वन कंसीडर है, दिस वन, तो ये क्या हो जाएगा, नो नो सॉरी, ये भी कंसीडर नहीं होगी, ठीक है। तो ओनली 2, ये 2 रिप्रेजेंट, तो इसका मतलब है कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, 2 को, ठीक है। साथ साथ देखें, कोई पिक्चर ले लिया करें, जिस तरह भी अंडरस्टैंड करना है इसको अंडरस्टैंड किया करें। तो ये आपका फाइनली इट्स मीन 2 1 F D, राइट। क्योंकि ये आपका माउस पैड से मैं राइट करता हूं तो कोई प्रॉपर नहीं है इसका राइटिंग का मेथड, बस इसको ऐसे ही करना पड़ता है, तो इसलिए डिजिट्स सम टाइम क्लियर बनते हैं। ओके, इक्वल्स टू दिस, ठीक है, इस चीज के इक्वल है। क्लियर हो रही है बात? ये सारा हमने सिंपल मेथड था। अब आपको देखें ये चीज उसने भी की होगी। BF1 2 उल्टा। होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है ना। ऐसे ही आएगा जैसे जैसे उनके नीचे। ये देखें, ऐसे ही आएगा। क्या कर रहे हैं सर? ठीक है। पहले क्या किया उसने, इसको रिप्रेजेंट किया है, टाइम है, चलो इसको पहले इसने 4 बिट्स में डिवाइड किए, ओके, और यहां पर बिट्स नहीं थी इसलिए 2 बिट्स खुद लगा दी। तो ये देखें, ये डी कर रहा है, ये एफ को कर रहा है, ये 1 को कर रहा है, और ये, ठीक है। अब सिंपल या तो एक वे ये था कि आपको ये टेबल याद हो, ठीक है, एग्जैक्ट हो, जल्दी जल्दी वैल्यूज देखें रखें, लेकिन इसमें एरर के चांसेस है, ठीक है ना। बट इसको याद कर लें, ठीक है, कहीं ऑब्जेक्टिव में कहीं पर भी काम आ सकता है। बट आपको रिमेम्बरिंग दिस वैल्यूज इज नॉट अ बिग टास्क। ये तो बहुत ही सिंपल है, जल्दी से भी कहीं भी जल्दी से ड्रॉ कर लें। 1 2 4 8 1 2 4 8, बस जल्दी से ड्रॉ करें एंड स्टार्ट सोल्यूशन, ठीक है, राइट करना शुरू कर दें। तो यहां तक होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल, अभी जो आपने ये मेथड समझ लिया है ना, वो 1 2 4 8 वाला, वही अभी दोबारा हमारे काम आएगा, ठीक है ना। नाउ कन्वर्टिंग फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब वो रिवर्स प्रोसेस, आपको हेक्साडेसिमल में वैल्यू दी गई है एंड यू विल हैव टू चेंज इट इनटू बाइनरी नंबर, ठीक है, कि हेक्साडेसिमल नंबर का सिस्टम दिया हुआ है एंड यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। फिर मैं आपको थोड़ा सा शो ऑफ कर देता हूं ताकि आपको इजी हो। देखें, ये आपको एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दिया है, वो उसने बताया हुआ है, बताएगा आपको कि ये हेक्साडेसिमल है, राइट। इसको कन्वर्ट करना है आपने बाइनरी, ठीक है। तो अब ये ए लिखा हुआ है, अब आपने इसको, आपको पता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बाइनरी में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये इक्विवेलेंट टू 4 बिट्स होता है,
ठीक है, 4 बिट्स होता है। तो आप फिर वही हेल्प लें उसी मेथड की, ठीक है, 1 0 और की हेल्प लें आप। ये देखिए, अब ए, आपको पता है कि ए किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को। ए रिप्रेजेंट किसको करता है, 10 को ना, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये समझ लें, बहुत इजी हो जाएगा। अब आपने इन 4 वैल्यूज की हेल्प से 10 बनाना है, ठीक है। 8 + 2 कितना होगा, 10। 10 कि आपने इस बिट्स को ऑन कर देना है, इसको ऑफ कर देना है, इसको ऑन कर देना है, एंड दिस वन ऑफ कर देना। तो ए का मतलब हुआ कि ए जो है बाउंड्री में कैसे रिप्रेजेंट होगा, 1 0 एंड 1 0 1 0 इजी था ना। अब देखिए यस नेक्स्ट आप वैल्यू देखें, नाउ यू विल हैव टू मेक 5, आपने 5 बनाना है, ठीक है। तो इट्स मीन 8 तो आप ले नहीं सकते, 4 को ले लें, ठीक है। 2 को भी आप नहीं ले सकते, 1 को ले लें। 1 5 1 5 0 1। तो 5 is representing by 4, which 4 bits, 0 1 0 1, okay। 1 और सिमिलर फैशन में यू विल हैव टू मेक 4 बनाने के लिए बड़ा सिंपल है, डायरेक्ट 4 है। दिस वन, ओ सॉरी, दिस वन विल बी 1, ठीक है, ऑल अदर विल बी 0। तो 4 कैसे बन जाएगा आपका, 0 1 0 0। अब आप जब इन सारी बिट्स को इकट्ठा करके लिखेंगे, ठीक है, तो आप देखें कि ये सारी ये वैल्यूज बन जाएंगी। इन सबको फिर इकट्ठा करके लिख दें आप, राइट। तो ये देखिए, यस ये फिर हमने इसको कंबाइन करके सारा लिख दिया। ये 4 बिट्स इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये 4 बिट्स इसको, और ये 4 अभी, और ये 4 की 4 हमने विदाउट टेबल। एक तरीका ये था कि हम जाते डायरेक्ट, हम देखते ए की वैल्यू कौन सी है जी, अच्छा ए की वैल्यू ये है, ये उठा के लिख देते, ठीक है। और देन बी जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है उसको लिख देते, लेकिन टेबल अवेलेबल भी नहीं होगा, ठीक है। और टेबल आपको याद एग्जैक्ट होना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा टेबल फिर भी रिमेंबर करके रखें। अंडरस्टैंड हो गया ना आपको। एक एग्जांपल और यस सर देखें, एक एग्जांपल और दे रहा है वो, फिर इसी की हेल्प ले लें, ठीक है। अब ये तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया। समझ गए ना, समझ गए। अब आपने खुद सोचना है, ठीक है, बेशक बोले ना, क्योंकि आवाज मिक्स साउंड का इशू आ जाता है, बेकर माइंड में आप रखें, ठीक है ना। या अगर साथ साथ करते हैं 8, ठीक है, यू विल हैव टू मेक 8, आपने 8 बनाना है। इसको ठहरे, एट बनाना है, बहुत सिंपली इस बिट को ऑन कर दें। तो ये देखें 8 बन गया, ठीक है, राइट। 0 बनाना है, तो 0 का तो मतलब है कि सारी ऑफ, वो तो सिंपल है, यस सर ठीक है। F का मतलब है 15। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ, एफ जो है आपका लास्ट डिजिट है हेक्साडेसिमल का, 15। आपने 15 क्रिएट करना है थ्रू दिस। तो 8 लेते हैं, 8 + 4 12, यस, सारों को प्लस कर देंगे ना, सारों को प्लस कर देंगे, ठीक है। 4 12, 12 + 2 14 और 1 15। और तो सारी ऑन हो जाएंगी। सारी ऑन होने का मतलब है कि ऑल वंस, ठीक है, क्लियर। देन हमारे पास बी है, बी का क्या मतलब होता है, अगर नहीं भी याद आ रहा तो ए से स्टार्ट कर लिया, सिंपल। ए का मतलब है 10, तो बी का मतलब क्या हुआ, 11। So it's mean we have to make 11, हमें 11 बनाना है, ठीक है। तो 11 बनाने के लिए 8 को ऑन कर लें, 4 को करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। यस अगर हम 4 को ऐड करेंगे तो इट्स मीन कि ये 12, इसको निग्लेक्ट कर दें, ठीक है। 2 को करेंगे 10 और 1 को करेंगे 11, ओके। तो फिर 1 0 1
1। अब ये देखें, आपको याद नहीं रखना पड़ रहा इसकी मदद से। 11 इज इक्वल टू 1011, ये टेबल में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका 11 और ये रहा 1011, ठीक है। बट ये जरा यू रिमेंबर रखना डिफिकल्ट है। तो आपकी ये क्या वैल्यू बन गई, ये आपकी बी की वैल्यू बन गई, ठीक है 11। और इन सबको इकट्ठा जोड़ के लिख देंगे, जो गैप है इनको खत्म कर दें, ठीक है, एंड में। तो ये आपकी ये फाइनल डिजिट बन जाएगा बाइनरी के अंदर। ओके, अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, तो ये आपकी सारी बाइनरी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन। इसको देखें, प्रैक्टिस करें, ये क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट है। कन्वर्ट द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, हेक्सा को बाइनरी में लेके जाना है। इसका 4 डिजिट देखें, ठीक है, इसका 4 डिजिट सर ये देखें। आप ग्रुप में भेजना होमवर्क। जी मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। और ये वाला भी, राइट, ये वैसे आपकी बुक की एक्टिविटी भी है, नोट कर लें, एक्टिविटी 1.4 यस सर। सर एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5, नॉट अ बिग टास्क, सिंपल बात है, आप इसको वहां से देख लें, ठीक है। इसलिए मैं आपकी बुक को लेके चलता हूँ साथ, ये स्लाइड्स में भी लेके चलता हूँ। बाकी ये चीजें आपकी हेल्प के लिए मैं बनाता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। बुक ने तो बहुत शॉर्ट लिखा होता है और प्रिसाइज वे में नहीं लिखा होता, ठीक है। तो आई सर एक थिंक दफा टेबल खोलने मैंने स्क्रीनशॉट लेने। टेबल खोल दूं, ठहरो, सर पेज नंबर 6 पे है। ये मैं रब कर देता हूँ। एक्टिविटी क्या कह रहे हैं, ये टेबल का कह रहे हैं? टेबल ये वाला ही है ना? सर ये पेज Yes, 6 sir. पे है। सर ये टेबल भेज सकते ग्रुप में? सर ये टेबल भेज सकते ग्रुप में? हाँ, ये टेबल बहुत इजीली अवेलेबल है, शायद आई थिंक आपकी बुक में भी बनाओ, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा इसको सेंड आउट कर दूं। एक्चुअली ये मैंने लैपटॉप पे बनाया होता है, फिर मोबाइल पे इसको कन्वर्ट करके ले जाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। बहरहाल मैं आपको सेंड करता हूँ, ठीक है। अच्छा सर। नहीं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट सिंपल, आप लोग क्या क्या करें, अपने लैपटॉप की प्रिंट स्क्रीन का बटन है, अपर मोस्ट पे देखिए, प्रिंट स्क्रीन का बटन होगा। जी सर, प्रिंट स्क्रीन है।